Good morning, class. Today I am starting the new poem, the next chapter of your poem, that is the Laburnum Top. See, here the poem is related to how we take our life. You can say how we make our life. See, it's many things depends upon us. In which meaning we take our life. We can make it dull also and we can make it interesting also. That depends upon us. So, now let us study the central idea of the poem afterwards. Now, central idea of the poem is, see the poem Laburnum Top is a beautiful poem in which the poet has used the laburnum tree and goldfinches as symbol of the life. See, life, there are many fluctuations which it is representing through this poem. See the poem. It is a very beautiful poem in which the poet has used the laburnum tree which was lifeless. Okay, it was living a dull life, and goldfinches has make its life lively, है ना? And its fluctuations. See, in this poem, the poet describes how the visit of goldfinch changes the laburnum tree. See, when the goldfinch come to lemon tree, then his life has become interesting and lively. Otherwise, he was living a dull and still life. Still life मतलब एक जैसी ही कुछ जो नई उमंग, कुछ भी होप नहीं थी जहाँ पे. Now, the goldfinch transforms the tree and makes it come alive. देखो देखो, गोल्डफिंच ने उसकी लाइफ जो है वो चेंज कर दी. As the cheeks of the goldfinch start to rustle and chirp on seeing her. तो जो इसके चिक्स से गोल्डफिंच के, वो जब चहचहाते थे ये चीज़, और थोड़ा थोड़ा सा जैसे उड़ना उन्होंने स्टार्ट किया. Once the goldfinch leaves the tree, it becomes quiet and still again. Now the laburnum tree symbolizes the pattern of our life in general. जो जनरल में जो हमारी लाइफ है ना, ये उसको करता है, which is usually dull and inanimate. Inanimate because there is nothing creativity. हमारी तरफ से कोई creativity नहीं होती. The goldfinch breaks the usual pattern, और उसी चीज़ को goldfinch जो है वो break कर देती है. So beta see, now once the goldfinch leaves the tree, it becomes quiet and still again. Now when the goldfinch leaves, now देखो जैसे वो ऑटम सीजन और ये सब फेस आउट करते हैं, तो फिर से वो क्वाइट और स्टिल वैसे ही बन जाता है पहले जैसा. और द laburnum tree symbolizes the pattern of our life in general, which is usually done and inanimate. I told you inanimate because nothing is creative. हम कुछ भी नया या कुछ भी अच्छे तरीके से नहीं, बस वो ही एक रूटीन है जिसे हम फॉलो करते जाते हैं. हालांकि वो भी हमारे बोरसम हो जाता है. द गोल्डफिंच ब्रेक्स द यूजुअल पैटर्न एंड मेक्स इट लाइवली. और गोल्डफिंच इसी चीज़ को ब्रेकआउट करता है, जो हम डेली जो लाइफ जी रहे हैं इसी चीज़ को ब्रेकआउट करता है और लाइफ को जो है वो लाइवली बना देता है. Without the goldfinch, the laburnum tree is just like another tree. बिल्कुल जैसे और पेड़ है बिल्कुल वैसे ही नज़र आता है. In other words, it is attitude of a person. देखो हमारा, यानी कि अगर हम सही तरीके से समझे तो एक पर्सन का एटीट्यूड से कि वो अपनी लाइफ कैसे जीता है, या तो उसको मीनिंगफुल और वर्थ लिविंग बना दे, या तो फिर जीने का एक मज़ा आ जाए और एक मीनिंगफुल कुछ आप आए हो यहाँ कुछ उसको मीनिंगफुल बना. या तो ये होता है, या फिर सिंपल जैसे और जी रहे हैं सिंपल एक वही रूटीन लाइफ.
बिकॉज कुछ जने होते हैं जो लाइफ को एक स्पेशल बना देते हैं, जिन्हें हम याद करते हैं, है ना। बहुत होते हैं बेटा ऐसे, अगर आप देखो तो बहुत है जो मिलिट्री में थे और दे हैव लॉस्ट, क्योंकि उन्हें जो गन लग जाती है उसके कारण उनके मतलब कुछ ना कुछ वो लॉस्ट खो कर देते हैं, या तो हैंड्स या लेग्स, लेकिन स्टिल भी उनमें जीने की एक उमंग रहती है और अपना नेम फेम करने की उमंग रहती है। और देखो वो पैरा ओलंपिक्स में गोल्ड या कुछ ना कुछ लेके आते हैं। तो हम में से बहुत कुछ ऐसे जने होते हैं जो अपनी लाइफ को मीनिंगफुल बना देते हैं, और बहुत ऐसे होते हैं जो एक डेली रूटीन जैसे एक लाइफ जी लेते हैं। सो स्टैंजा 1, नाउ स्टैंजा वाइज आई विल एक्सप्लेन द पोम। नाउ फर्स्ट स्टैंजा देखो, द लेबनम टॉप इज साइलेंट क्वाइट स्टिल इन द आफ्टरनून येलो September sunlight, a few leaves yellowing, all its seeds fallen। देखो बेटा ये येलो क्यों बोला गया है, ये ऑटम सीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है जो आपके स्प्रिंग के बाद में आता है, डेट मीन्स मानसून के बाद में आता है, जहाँ ग्रीनरी होती है मानसून में और यहाँ पे ये पतझड़ हो जाता है। ओके, सो लेबनम टॉप पार्ट ऑफ लेबनम ट्री को कहते हैं। So here the poet describes a beautiful sunny autumn। एक ब्यूटीफुल सनी ऑटम को डिस्क्राइब कर रहा है पोएट। द लेबनम ट्री इज साइलेंट एंड स्टिल। जो लेबनम ट्री है वो बहुत ही चुप है और एक स्टिल मतलब होता है एक जगह खड़े रह जाना, स्थिर रह जाना, तो वैसे है। इट इज़ लेडन विद येलो लीव्स एंड येलो फ्लावर्स। देखो वो भरा हुआ है येलो लीव से, येलो फ्लावर से। इन सेप्टेम्बर इन इट्स लीव्स हैव टर्न्ड येलो बिकॉज ऑफ द ऑटम सीजन। उसकी जो लीव्स है वो ग्रीन से येलो क्यों हो गई, क्योंकि स्प्रिंग सीजन में चेंज आ गया है, जो है अब ऑटम सीजन है। एंड ऑल इट्स सीड्स हैव फॉलन, और सारे बीज जो है वो गिर गए हैं। Now, till the goldfinch comes with a twitching chirp, a suddenness as startment at a branch end, then sleek as a lizard and alert and abrupt, she enters the thickness and a machine starts up of chitterings and a tremor of wings and trillings. The whole tree trembles and thrills. It is the engine of her family. She strokes it full, then flirts out a branch and showing her bared face identity mask. First, I would tell the meaning. If you want to note it down, beta, you can note down. Now, goldfinch is a small yellow bird. Now, twitching, a small, often involuntary movement of the body. Twitching होती है जो आप नॉर्मल मतलब ऐसे जो हल्की सी मूवमेंट हो जाए बॉडी पे, दैट इट इज़। चिर्प तो आपको पता है जो बर्ड्स की साउंड होते हैं उसे कहते हैं। स्टार्टलमेंट होती है अमेजमेंट, जो खुशी से एक खुशी, नई खुशी लेके आती है, नई उमंग लेके आती है। स्लीक स्मूथ को कहते हैं। एब्रप्ट सडनली अचानक से। चिटरिंग जो बर्ड्स के बेबीज होते हैं जो वो वॉइस करते हैं उसे कहते हैं। ट्रेमर शेकिंग को कहते हैं बेटा। जैसे अर्थक्वेक आता है ना, तो अर्थक्वेक हम कहते हैं उसको, ट्रेमर्स भी कहते हैं। जैसे हमारी जो धरती हिलती है तो ट्रेमर शेकिंग को कहते हैं। ट्रिलिंग टू सिंग अ सीरीज ऑफ क्विकली रिपीटेड हाई नोट्स। ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स जो वायलेंटली मतलब बहुत ज़ोर ज़ोर से शेकिंग होती है उसको कहते हैं। द इंजन ऑफ हर फैमिली द गोल्डफिंच। स्ट्रोक्स जो फ्यूल हम ऐड करते हैं।
हेयर जो, और इधर क्या है, गोल्ड फिंच जो उसके बेबीज को जो वो खाना खिला रही है उसको एक तरीके से वो फ्यूल ऐड कर रहा है उसमें। फ्लर्ट्स, धीरे धीरे कदम जैसे हम रखते हैं उसको कहते हैं। बेयर्ड, स्ट्रिप्ड। नाउ देखो, जस्ट then a goldfinch alights on the laburnum tree, making short and high-pitched sounds. छोटी लेकिन बहुत तेजी वाली, तीखी वाली आवाज़। The goldfinch has her nest in the tree, और goldfinch का nest है इसके ट्री में। And her chicks are resting in the nest, और उसके जो chicks हैं वो रेस्ट कर रहे हैं उस नेस्ट में। On the mother's return, a sudden movement stirs the tree. जो देखो, जब जैसे बर्ड्स होती है जब अपने चिक्स को छोड़ के जाती है और जब वो आती है तो उसकी एक अलग सी चहचहाट मच जाती है ना। तो ये उसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि ऑन द मदर्स रिटर्न अ सडन मूवमेंट स्टिर्स द ट्री। अचानक से एक मूवमेंट जो हो जाती है, चहचहाट सी हो जाती है। हर लिटिल वंस आर एक्साइटेड ऑन हर अराइवल एंड स्टार्ट चिर्पिंग। जो उसकी छोटे चिक्स हैं वो बहुत खुश होते हैं उसके आने पे, और वहाँ से वो चिर्पिंग शुरू कर देते हैं, अपनी वॉइस शुरू कर देते हैं। द कॉशियस मदर एंटर्स द ट्री विद ग्रेट केयर सो डैट नो प्रीडेटर कैन कम टू नो डैट हर बेबीज आर हाउस्ड इन द नेस्ट। ना देखो, हर लिटिल वंस आर एक्साइटेड ऑन हर, उसके जो छोटे बच्चे हैं बहुत एक्साइटेड, चहचहाने लग जाते हैं। और जो मदर है वो बहुत ध्यान से आती है, वो ये देखती है कि कोई देख ना ले कि भाई मेरे बच्चे भी हैं, नहीं तो खा जाएंगे वो मेरे बच्चों को। द पोएट हैज़ कंपेयर्ड द अलर्ट, एब्रप्ट एंड स्लीक मूवमेंट ऑफ द गोल्डफिंच विद दैट ऑफ अ लिजार्ड। एक लिजार्ड के साथ कंपेयर की हुई है। जैसे एक लिजार्ड है जब चलती है तो देखना वो 10 कदम बहुत सोच समझ के चलती है, एक कदम, तो वैसे उसे बोला गया है। द गोल्डफिंच हैज़ बीन कॉल्ड द इंजन ऑफ अर फैमिली। तो देखो बेटा, इसमें जब वो मदर आती है तो बच्चे जब चहचहा जाते हैं तो एक तरीके से वो भी बहुत ध्यान से आती है, तो उसके एक कदम को लिजार्ड जैसे बहुत सोच समझ के एक कदम रखती है, वैसे कंपैरिजन किया गया है। द गोल्डफिंच हैज़ बीन कॉल्ड द इंजन ऑफ हर फैमिली। उसको जो इंजन है जिससे आगे की गाड़ी चलती है, जैसे आपकी मदर इंजन है आपकी फैमिली की, है ना, जिनसे सारी गाड़ी चलती है। सो जस्ट नेस्ट हैज सडनली स्टार्टेड अप द साइलेंट मशीन, that is the young ones have started chittering and making noise। अब जैसे स्टार्ट होगी उसकी फैमिली की, भाई हाँ भाई छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो आवाज़ की चहचहाट और ये सब करने लग गए। बाय फीडिंग हर यंग वंस शी एडिड अ फ्यूल टू द मशीन। और जब वो उन्हें फीड करती है तो जैसे एक मशीन में एक फ्यूल डाल रही है ना, वैसा हो गया है। एंड एज अ रिजल्ट द चिक्स नाउ हैव द एनर्जी टू बी एक्टिव एंड मेक नॉइस। इसलिए उनके जो जब वो खाने लग जाए, खाते हैं चिक्स जो जेन्युइन हैं उनमें अब एक तरीके से वो एक्टिव हैं और एनर्जी भी है उनमें नॉइस करने के लिए। आफ्टर फीडिंग हर चिक्स द गोल्ड फिंच फ्लाइज अप एंड रेस्ट ऑन द एंड ऑफ अ ब्रांच ऑफ द ट्री। तो देखो, चिक्स को फीड करा के जो गोल्ड फिंच है वो थोड़ा ब्रांच के रेस्ट, देखो ब्रांच के एंड में चली जाती है ताकि थोड़ा वो रेस्ट कर ले। हर आइडेंटिटी कंसील्ड बिहाइंड द येलो फ्लावर्स एंड येलोइंग लीव्स। और येलो फ्लावर्स और येलोइंग लीव्स के पीछे। नाउ सी, देन विथ एरी डेलिकेट विसल चिर्प whispering she launches away towards the infinite, and the laburnum subsides to empty।
से इफ यू वांट टू नोट डाउन यू कैन नोट डाउन द मीनिंग। देखो बेटा, एरी का मीनिंग होता है स्ट्रेंज, बहुत अजीब सा तरीका। लॉन्चिस, फ्लाइज, ओके। इन्फानाइट, स्काई को बोला गया है जिसकी कोई ख़त्म ही नहीं होता, जो जिसका कोई अंत ही नहीं है। और सब्सिडीज टू एम्प्टी मतलब है चुप हो जाना, साइलेंट हो जाना, ठीक है। नाउ आफ्टर सम टाइम द गोल्डफिंच मेक्स अ Now, see, once again I am saying, after some time the goldfish makes a strange and short high pitched sound। जो गोल्डफिंच है वो बहुत ही अजीब सी हाई पिच्ड साउंड बोलती है। देन शी फ्लाइज अवे, और फिर वो ऊपर उड़ जाती है। द लेबनम ट्री बिकम्स साइलेंट अगेन, फिर से वो चुप हो जाता है क्योंकि उसकी जो मदर है वो चली गई है वहाँ से, इसीलिए वहाँ पे जो बच्चे हैं वो चुप हो जाते हैं। और जैसे ही वो आती है तो उसके बच्चे जो है वो चहचहाने लग जाते हैं। तो मतलब यहाँ पे एक बर्ड का दिखाया है कि जैसे ही बर्ड आती है उसके बच्चे जो है पेड़ को चहका देते हैं, उसमें जान डाल देते हैं उनके चहचहाने से। और जैसे ही वो चली जाती है तो वही, तो पेड़ वापस पहले जैसा ही हो जाता है। नाउ द लेबनम ट्री बिकम साइलेंट अगेन एंड आफ्टर द डिपार्चर ऑफ द गोल्डफिंच एंड एवरीथिंग सीम्स टू बी द सेम एट इज वॉज बिफोर द अराइवल ऑफ द गोल्डफिंच। जैसे उसके गोल्डफिंच के आने से पहले बिल्कुल वैसा का वैसा लगता है जैसे पहले पेड़ था, जो नेस्ट से पहले और गोल्डफिंच के आने से पहले पेड़ था, बिल्कुल वैसे ही लगता है। तो इसके अंदर यानी कि देखो बर्ड आती है तो एक जान डाल देती है, चहचहाने लग जाती है। अब देखो नाउ जो पोएटिक डिवाइसेस इस पोम में यूज होते हैं, फर्स्ट है सिमिली। एक थिंग जो है वो दूसरे से कंपेयर की गई है इसी में, जैसे स्लीक है, स्लीक एज अ लिजार्ड, मतलब जैसे वो ध्यान से, बहुत ध्यान से कदम रखती है जैसे एक लिजार्ड के जैसे। तो ये हो गया बेटा एक तो सिमिली। सिमिली होता है मतलब वैसा ही, मेटाफोर होता है बिल्कुल वही का वही। जैसे बेटा मैंने जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं ये बोलूँ हर हार्ट इज लाइक अ गोल्ड, तो मतलब उसके सोने जैसा दिल है, ठीक है। हर हार्ट इज गोल्ड, अब उसका जो दिल है वो बिल्कुल सोना है। तो यहाँ पे जो मैंने बोला हर हार्ट इज गोल्ड, ये मेटाफोर है। और अगर मैंने बोला हर हार्ट इज लाइक गोल्ड, ये आपका सिमिली है, मतलब वैसा ही, वो नहीं बल्कि वैसा सा ही। ना मेटाफोर देखो इस स्पीच में ना देखो बेटा, तो इसमें मेटाफोर जो यूज है, एक तो सबसे पहले उसको इंजन कहा गया है अपनी फैमिली का। तो इंजन वो एक मेटाफोर है, जैसे इंजन आगे लगा होता है और फिर ही ट्रेन आगे चलती है, तो ये उसको ऐसे इंजन इसमें मेटाफोर हो गया, ठीक है। और जो मशीन बोला गया है जैसे, ठीक है, तो ये सारे वर्ड्स जो है ये मेटाफोर में बोला गए हैं। ना एलिट्रेशंस क्या हो गए? एलिट्रेशंस अगेन आई एम टेलिंग, जो आपके रिपीटेड स्टार्टिंग लेटर है डैट इज एलिट्रेशन। जैसे इसके अंदर सितंबर सनलाइट है, ठीक है। सडननेस, स्टार्टमेंट, ये है अलर्ट और एब्रप्ट, ये सारे एलिट्रेशंस है। फिर ओनोमाटोपोई क्या होता है बेटा? जैसे हम कई बार जो बाय मतलब वर्ड्स नहीं बोल के हम जैसे और अदर वर्ड्स जैसे कहते हैं, जैसे कम करते हैं ना, व्हाट इट मीन्स, ये ओनोमाटोपोई वर्ड है जिसका मीनिंग होता है शी, ठीक है।
जैसे अगर हम गर गर करें तो ये जो वर्ड्स होते हैं ये जस्ट हमने उसको डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ किया है। सो वैसे ही देखो इसके अंदर जैसे चिटरिंग है, ट्रिलिंग्स है, विसल चिर्प है, ये सारे आपके यूज़ किए गए हैं। ट्रांसवर्ड एपिथेट क्या होता है बेटा? ट्रांसवर्ड एपिथेट जैसे हम किसी का करेक्टर या कोई इवेंट जैसे डिस्क्राइब करते हैं वो है, या कोई सिचुएशन। तो इसमें जैसे सिचुएशन डिस्क्राइब कर रखी है कि हर बेयर्ड फेस आइडेंटिटी मास्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसवर्ड। देखो ठीक है, जो ये बेयर्ड फेस आइडेंटिटी मास्क है ये यूज़ किया गया है। The flowers of the laburnum tree fall like bars, and when the bird sits behind like the flowers, the shadow of the flowers on her face looks like she is wearing a mask that has bars on it. ये जो लाइन है ये आपकी बिल्कुल वो यूज़ की गई है, wearing a mask that has bars on it। ये है आपकी ट्रांसवर्ड एपिथेट। ओके, जो किसी करेक्टर या किसी इवेंट को डिस्क्राइब करती है, किसी सिचुएशन को डिस्क्राइब करती है। Now see now see beta few questions। Now what laburnum is called in our language में क्या कहते हैं? अमलतास ट्री जिसको कहते हैं। विच लोकल बर्ड, ये गोल्ड फिंच को हम क्या कहते हैं बेटा? इंडियन में तो लुटिनो रिंग नेक कहते हैं। ठीक है। नाउ व्हाट डू यू नोटिस अबाउट द बिगनिंग एंड एंडिंग ऑफ द पोम? आप क्या नोटिस करते हो बेटा कि द थिंग सिमिलर इन द बिगनिंग एंड द एंडिंग ऑफ द पोम, कि सिमिलर है। देखो पहले भी वो खड़ा था पेड़ और फिर जब बाद में वो बर्ड चली गई है तब भी वो वैसे ही वैसे डल और स्टिल लाइफ जी रहा है ना। तो उसमें बीच में है कि वो बर्ड आती है तो बीच में जो लाइफलेस हो जाती है, मतलब एक्टिव हो जाती है लाइफ। तो वैसे ही देखो तो फिर लेबनट्रम ट्री स्टिल साइलेंट, बोथ में साइलेंट ही है, स्टार्टिंग में भी और एंडिंग में भी। नेक्स्ट है टू व्हाट इज द बर्ड्स मूवमेंट कंपेयर्ड? व्हाट इज द बेसिस ऑफ द कंपैरिजन? देखो जो बर्ड है गोल्ड फिंच, उसके मूवमेंट को कंपैरिजन किया गया है एक लिजार्ड से, कि बहुत सोच समझ के एक लिजार्ड कदम रखती है वैसे ही ये कदम रखती है। द बेसिस ऑफ द कंपैरिजन इज द गोल्ड फिंच मूवमेंट इज सडन, एकदम अचानक से है ना। विच इज़ क्वाइट सिमिलर टू द मूवमेंट ऑफ द लिजार्ड। देखो लिजार्ड में जैसे वो, अगर आपको देखा होगा तो आप भी गैस नहीं कर सकते कब ये अगला कदम रखेगी, बहुत सोच समझ के रखती है लेकिन आप गैस नहीं कर सकते, वैसे इधर ये बर्ड का है। Why is the image of the engine evoked by the poet? The poet evokes the image of the engine as it is a source of energy for a machine। वो इसलिए कहा गया है जो कि जो मशीन है उसका सोर्स है, फ्यूल है एक तरीके से, इंजन उसका स्टार्टिंग पार्ट है जो उसे धक्का दे के आगे चलाता है। द पोएट कंपेयर्स द बर्ड विद द इंजन एज शी इज द सोर्स। उसे इसीलिए कहा गया है क्योंकि वो ही एक अलोन सोर्स है जो उसकी फैमिली को वो आगे बढ़ा रही है। फॉर द मशीन दैट इज द नेस्ट वेयर द चिक्स आर रेस्टिंग। और मशीन क्या है? मशीन नेस्ट है जहाँ पे उसके चिक्स जो हैं वो रेस्ट कर रहे हैं। नाउ व्हाट डू यू लाइक द मोस्ट अबाउट द पोएम? देखो इस पोम में क्या हमें सबसे ज़्यादा पसंद है? नाउ सी इसके अंदर तो देखो बेटा जो देखो बेटा जैसे लेबनम ट्री का डिस्क्रिप्शन है, येलो फ्लावर्स और उसका, और फिर उसके बाद में गोल्ड फिंच का अराइवल जैसे कहा गया है कि वो साइलेंट पेड़ में भी
एक लाइफ ला जाती है, वो भी नॉइजी और एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। सो आई होप टिल हेयर इट इज़ क्लियर टू यू। नाउ व्हाट डज द फ्रेज हर बेयर्ड फेस आइडेंटिटी मास्क मीन? इसका क्या मीनिंग है? द लेबनम ट्री हैज़ फ्लावर्स डैट फॉल लाइक बार्स। इसके जो फ्लावर्स है वो ऐसे गिरते हैं जैसे बार्स। एंड व्हेन द बर्ड सिट्स बिहाइंड द फ्लावर्स, और जब बर्ड्स उनके पीछे बैठती है, द शेडो ऑफ द फ्लावर्स ऑन हर फेस लुक लाइक शी इज़ वियरिंग अ मास्क। तो उस फ्लावर्स की जैसे शेडो पड़ती है उसके फेस पे, तो ऐसा लगता है जैसे उस बर्ड ने मास्क पहना हुआ है। तो इसलिए जो बेयर्ड है ये एक्चुअली में एक एडजेक्टिव है।